evening, everybody. I am Vani Malik. So, losing weight in a healthy way is a gradual process that takes time and effort. However, in recent times, the internet has so much information regarding fad diets that guarantee faster weight loss. However, is it healthy to do it this way? The debate of sustainable weight loss has become a major discussion in today's time. And today, we have a stellar panel to share their inputs on this topic. Please welcome dietitian Vidhi Chawla. She's founder of Physico Diet Clinic. Rashmi Rai, fitness influencer. Gunjan Taneja, content creator and founder of I Am Wow. And Saloni, a nutritionist and weight loss specialist. So, Vidhi, my first question is for you. There are various weight loss diets floating in the market. How safe is it to follow these diets without consulting a specialist? See, I will always say never follow any diet without consulting an expert because it's not only about a weight loss, it's about health. Okay, and it's the body in which you have to live in. So do not go for anything, which harms your body. It is very important to follow something, with weight loss, you want to gain your health back. So when you're doing something yourself with a fat diet, so you're just considering weight loss. पतला होना है साथ हेयर फॉल हो रहा है तो हो रहा है स्किन खराब हो रही है तो हो रही है और your immunity is at stake तो is it okay? But it should not be the case. It's very important to take care of your inside body also along with the weight loss, and that can happen under an expert advice. So it is very important to go to an expert and get your personalized diet plan. Do not follow any fad diet. And we all study, foundation discussion was happening before. It's very important to understand the nutrients, right? So हम सबको पता होता है कि हमारे बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी प्लेट इंपॉर्टेंट है, बट जब हम वेट लॉस डाइट पे आते हैं तो हम कार्ब्स छोड़ देते हैं, प्रोटीन पे सिर्फ डाइट को ले आते हैं, विटामिन मिनरल्स की टेक केयर नहीं करते, फैट्स की एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो फैट डाइट ना फॉलो करें, गो टू एक्सपर्ट एंड गेट अ हेल्दी बॉडी अलॉन्ग विद अ फिटर outlook body. Exactly. That I would say, yeah. जैसे कि विधि ने बताया that following a fat diet can have a lot of health implications. So Rashmi, my next question is for you. A lot of people resorting to crash diets and fat diets do not give that much importance to exercising. They think कि diet करके तो weight loss हो ही जाएगा. तो how much important is it for people to exercise while following a weight loss diet? First of all, I just want to say thank you for having me here. And also the agenda is not to hear and give some gyan and then people will go back and not follow the guidelines that we want you to follow. So I'm going to keep it very simple जो आप सब लोग समझ सकें और ऐसा ना लगे कि कोई ज्ञान दे के चला गया. So for fat diets, I just want to say कि आप जो fat diets उठाते हैं वो आप अपने किसी एक purpose के लिए उठाते हैं. And the thing is, you can never, ever, ever outdo a bad diet. मैं बहुत सिंपल से एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आपको लगता है कि मैंने आज बहुत मेहनत करी है, मैं ना 10K स्टेप्स चल के आया हूँ और मैंने इतने बड़ा वर्कआउट किया है. Do you know how much of calories you have burned? If you have really worked out, I do heavy weight lifting, 700 to 800 calories. 1.5 brownie. 1.5 brownie जो आप सोचते हैं ये तो मैं खाने के बाद खा लूँगा या खा लूँगी, actually amounts more to that. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक्सरसाइज को अपने बुरे खाने खाए हुए को कंपनसेट करने के लिए कर रहे हैं, इट विल नेवर हैपन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डाइट हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले वाइल द एक्सरसाइज हैज़ अ वेरी डिफरेंट रोल टू प्ले. डाइट आपकी बॉडी को नरिश करने के लिए है, वाइल एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है. वो ना चिकन और एग की तरह है कि पहले क्या करें पहले क्या ना करें, बट जस्ट इंश्योर कि जो भी आप फैड डाइट या फैड एक्सरसाइज या फैड वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो फैड है. अगर वो इतनी हेल्पफुल और इतनी आप यूज़ कर सकते होती है तो वो आती और जाती नहीं रहती होती. सो इट्स इंश्योर कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेक श्योर यू वॉक, ओनली वॉक, कुछ भी मत करिए. और एंड दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इतना सारा खाने के ऑप्शन है और कौन कौन से फैट डाइट्स खा लें, हम ये वाली खा लें, वो वाली खा लें, प्रोटीन वाली खा लें, आप अपनी थाली को देख के बस खा लीजिए. आपकी थाली में कार्ब्स, प्रोटीन्स, वेजीज और हेल्दी फैट्स होने चाहिए. इनकी मात्रा मैं समझाने लगी तो मे बी 2 दिन और लग जाएंगे, बट ये समझिए कि कार्ब्स और प्रोटीन की मात्रा से कई गुना ज़्यादा आपके वेजीज होने चाहिए, फैट्स कम होने चाहिए. अगर आप प्रोटीन के लिए काम कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए. कार्ब्स, अगर आप बहुत मेहनत का काम करते हैं तो कार्ब्स आपके एनर्जी के लिए होता है. बट स्टिल आई वुड स्टिल से अगेन, डाइट हर बंदे के लिए अलग होता है. मैं यहाँ बैठ के हर एक बंदे के लिए अलग अलग डाइट बता सकती हूँ, बट वी अंडरस्टैंड कि
सबके लिए अलग है, बट इस स्टेज पे अगर मुझे जेनरिक बताना है तो आप कभी भी आउटडू नहीं कर सकते हैं एक बैड डाइट को. जस्ट कीप द एक्सरसाइज एंड द डाइट सेपरेट. So Gunjan, like Rashmi said, ke exercising is equally important. You have founded a community where you have trained and transformed so many people. What sort of mentality have you sensed in the people who have come to you for weight loss, and what has been your approach for them? Thank you, Vani, for asking this question. And actually, when people come to us in order to lose weight or gain strength, all of them they have different goals, right? One thing which is common is they come with a very strong desire to change. And I'm sure everyone sitting in this room also, अगर आप किसी स्पेसिफिक डाइट प्लान को फॉलो करते हो या कोई भी डाइट फॉलो करते हो तो एक चेंज की आशा के साथ करते हो. सो दे कम विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चेंज फिजिकली एज वेल एज ओवरऑल. सो मोटिवेशन बहुत होती है, बट प्रॉब्लम भी इसी में ही है. लाइक सम ऑफ देम दे कम विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिजल्ट की वांट होती है और इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं. सो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं. देन देर आर सम पीपल हु कम टू अस विद वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. दे थिंक कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा. तो पहले से ही बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हम कैरी करते हैं माइंड में कि पता नहीं यार कर तो रहे हैं, होगा या नहीं होगा, मैं फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. सो ऑल दीज थिंग्स. एंड देन देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल हु कम विद अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट. क्योंकि बहुत सी फैट डाइट्स जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत फैट्स वो शॉर्टकट्स फॉलो करके आए होते हैं जिससे रिजल्ट्स नहीं मिलते, या फिर मिलने के बाद वापस वेट पुट ऑन हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन साथ में आती है. तो ये चैलेंजेस आते हैं, ये सब माइंडसेट होता है लोगों का. और इसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू एडुकेट देम. मुझे लगता है किसी भी डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान से पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, इट्स इसेंशियल टू एडुकेट देम, टेल देम, हेल्प देम सेट द गोल राइट. कितना वेट लूज आपके लिए सही है, कितना आपका आइडियल वेट होना चाहिए और कितना टाइम उसको लग सकता है. एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू फोकस ऑन द नंबर, होलिस्टिक वेलबींग. सो ये सारी एजुकेशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं. एंड देन वी ऑल्सो अभी लास्ट जो हुआ था ये उसमें भी डिस्कस हुआ था बिहेवियर चेंज. सो बिहेवियर चेंज के ऊपर भी डिस्कस करना. सो डाइट तो सिर्फ खाना है, बट उसके साथ सिर्फ हम ये सोच लें कि हमें डाइट करनी है तो नहीं हो जाती. माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो वर्किंग ऑन एडुकेटिंग देम, हेल्पिंग देम सेट राइट हैबिट्स, एंड देन डाइट प्लान तो है ही. सो जैसे कि लाइक गुंजन यू जस्ट सेड कि बहुत लोग को बहुत जल्दी होती है वेट लूज़ करने की, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना होता है, बट इसका एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि जो वेट लोग लूज़ करते हैं वो वापस भी आ जाता है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर सलोनी. सलोनी, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ हेल्दी वेट लॉस प्लान सो दैट जो वेट लोग लूज़ करते हैं वो वापस ना आए कभी? So technically what I feel, as Gunjan also addressed, that people come with a lot of unrealistic expectations. Up internet pe jao, the topmost videos will be about lose 10 kgs in a month. Yeah. All these things are spreading wrong awareness. So set realistic expectation. That would be the first component according to me. And then the next component would be that whatever eating pattern that you are going to embark onto, that should be according to your preferences, your lifestyle, and not other way around. किसी ने अगर 10 किलो किसी XYZ डाइट से लूज किए, it doesn't mean that it is going to suit you. So make sure whatever eating pattern that you are going to follow is for you, your unique needs and your preferences. Third would be, is this eating pattern going to fulfill all my nutritional requirements? अभी पिछले पैनल में भी बात हो रही थी deficiencies की. People get so many deficiencies because of fat diets. So make sure that whatever diet pattern that you are going to follow is fulfilling your nutritional requirements. And lastly, whatever diet pattern it is, make sure that you are able to follow that thing for the rest of your life. If you cannot follow that certain diet pattern for the rest of your life, then I'm sorry, that is a fat diet. So, Vidhi, I would also like to know your point of view that everybody wants to shed weight fast or see instant results. So, how can all of this impact the overall health of a human being?
See, it can affect a person in a very bad way, okay? If they're trying to lose with the fat diet and losing the weight from the body, which is not right according to science. See, healthy weight loss in a month should be taken by like 4 kg maximum according to science. You can target 800 gram to 1 kg per week, not more than that. And it can be 200, 400 gram also. It can be like 2 kg in a month also. Don't target, see, and I want to also mention, as she mentioned, it's not only about scale victories. Try to acknowledge your non-scale victories also along. Okay, your clothes are getting looser. If you have any medical issue, that's getting fine. Okay, your hormonal imbalance is getting fixed. If you have a gut health, poor gut health, that's also getting fixed. So take both the things together. Okay, so if you are losing weight, say weight के पीछे भाग रहे हो, तो आप कैसे कैसी चीज़ें देखोगे? First, ऐसा एक lifestyle restrictive eating zone. You get into the restrictive eating zone where you are missing out the foods which you love, okay? And when you are missing those foods which you love, you release more stress hormone in your body. And when you release more stress hormone in your body, that causes inflammation. And we all know acute inflammation, okay, चल जाएगा. जब वो chronic बन जाती है, it leads to many medical issues. Okay, so first thing. Second, you may end up having some nutritional deficiencies. Okay, with nutrition deficiencies, you see a lot of issues in your body, like अगर आपने प्रोटीन प्रॉपर नहीं खाया. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ लो कार्ब डाइट का, जो आजकल लोग सिर्फ लो कार्ब डाइट की तरफ जाते हैं. सो इन दैट केस ना एंटी स्पेयरिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटीन हैपन्स. सो व्हेन यू नॉट टेकिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट, द प्रोटीन स्टार्ट डूइंग इट्स वर्क. एंड व्हेन प्रोटीन स्टार्ट डूइंग इट्स वर्क, व्हाट हैपन, द प्रोटीन फंक्शंस आर इम्पेयर्ड. क्या होता है? मसल्स बिल्डिंग थ्रू प्रोटीन वो नहीं होगा. एंजाइम्स के लिए मसल प्रोटीन चाहिए, वो नहीं बनेंगे. डाइजेशन इफेक्ट होने लग जाएगी. आर हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाएगा. सो आई एम गिविंग ए कनेक्शन. सो इफ यू नॉट टेकिंग इनफ फैट्स इन योर डाइट, फैट डाइट कर रहे हो, तो क्या होगा? जॉइंट्स की लुब्रिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी. फैट सॉल्युबल वाइटामिन है A, D, E, K, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे. सो एवरी न्यूट्रिएंट इज कनेक्टेड विद सम फंक्शन. सो इफ यू फॉलोइंग अ फैट डाइट, यू क्रिएटिंग अ हैवॉक इनसाइड योर बॉडी and your all the functions are going haywire. It's affecting to a major extent. And as I said in the starting, it's the body in which you have to live in. Do not follow fat diet because it creates a lot of havoc. Yeah. जैसे कि विधि ने बताया, there are a lot of nutritional deficiencies, and of course Rashmi also touched base, Saloni also touched base on that. So my next question for you, Rashmi, is that a change in diet can also have various changes in the energy levels in the body, which impacts the ability to exercise. So what is your take on this whole concept of following a fat diet and not getting that sort of energy to exercise on a daily basis? Like I said earlier, हर बंदे का अपना अपना डाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है. जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या जो लोग कार्डियो कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, या कुछ लोग जो सेडेंटरी हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट अलग होती है. उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है. बट आई हैव सीन लोगों को पतला होने की इतनी जल्दी है कि वो एक्सरसाइज एक्सट्रीम पे करते हैं और फैट डाइट या डाइटिंग भी एक्सट्रीम पे करते हैं. मतलब कि वो दोनों तरफ से अपनी बॉडी की कोई भी रक्षा नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपने बॉडी को एक्सरसाइज पार्ट में भी, और आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपनी डाइट के पार्ट पे भी. सो बेसिकली आपका जो ये लूज़ करने का जो एजेंडा है, कभी किसी ने सोचा है आप में से? आई वुड लाइक टू आस्क समवन हियर कि आपको वेट लूज़ करना क्यों है? एनीवन? एंड आई वुड आस्क अ विमेन, बिकॉज औरतें ज़्यादा करती हैं कि पतला होना है. एनी विमेन आई वांट टू आस्क. कौन? जो भी, कोई भी, समवन इन पिंक, बिकॉज आई लव पिंक. कोई है? आप हैं. शी डजंट हैव अ माइक. आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप किसी को वेट लॉस, एनीबडी कैन टेल मी कि किसी को वेट लॉस करना है तो करना क्यों है? जो वेट लॉस आप लोगों के मन में ये बात आई है, वो आपके खुद के अंदर से नहीं आई है. दैट्स एन इशू. अगर आपको वेट लॉस अपने लिए करना है, जब आपको लगता है, भगवान ना करे कभी किसी को बीमारी हो, बट आपको लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से चलती रही या चलता रहा तो मुझे बीमारी होगी, उस बंदे का डेडिकेशन, चेक फॉर योरसेल्फ. अगर मैं आपको बोलूँगी कि आपको 5K रोज़ चलना है, आप नहीं चलोगे. बट खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, या आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको ना कल से चलना है, आप अपने 2 बच्चों को भी लेके जाओगे वॉक पे कि इनको ना हो जाए. सो वी वेट फॉर दैट टाइम कि हमारा भगवान हमारी कोई वाट लगाए, उसके बाद हम लाइन पे आए. इससे पहले वी डोंट सी दिस दैट वी ईट समथिंग राइट सो दैट वी कैन एक्सरसाइज राइट, एंड वी एक्सरसाइज राइट सो दैट वी ईट राइट. हमारे जिम में ना ये बहुत बड़ी फनी बात है, लोग कहते हैं जिम में इतनी मेहनत करो कि घर जाके ना जंक फूड ना खाया जाए, और घर में इतना अच्छा खाना खाओ कि वर्कआउट में चीट ना किया जा सके.
So it's a balance. That's what I tell you कि please अपनी diet और exercise को balance करके चलो, भाई बहन जैसे हैं. So, Gunjan, my next question is for you. What are the common challenges that people can face when they're trying to combine diet and exercise for weight loss? Because you've transformed so many people, you've given them that sort of training. So, what is that as an expert that you would like to tell people dealing with such concerns? टाइम, वेरी वेरी क्लियरली. डाइट भी करनी है, डाइट करना इजी नहीं है. यू हैव टू प्लान योर मील्स, उसके बाद उसको प्रिपेयर करना, राइट शॉपिंग करना, यू नो, ये सब करना आसान थोड़ी ना. एंड देन एक्सरसाइज, टाइम निकालना, एक्सरसाइज के कपड़े पहनना, देन जाना, इतना टाइम कहाँ है आजकल हमारे पास. सो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर यू नो चैलेंज विच पीपल फेस, कि करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है करने के लिए. कैन वी रेज आवर हैंड्स यहाँ पर जिन के पास टाइम की कमी है, डाइट एक्सरसाइज करने नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज. सो मोस्ट ऑफ अस, तो यहाँ पे मतलब हैंड्स रेज नहीं करे, बट मेरे पास जितने लोग आते हैं उनके पास टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो दिस इज़ वॉट वी हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज. सो कुछ ऐसा रेजिमेन जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ ऐसा रूटीन जो हम कंसिस्टेंटली कर पाएँ. कुछ ऐसा मत स्टार्ट करो या इस तरह की डाइट मत करो जो यू कैन नॉट डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो फॉलो समथिंग सस्टेनेबल विच यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एक्सरसाइज ऐसी जिसको आपको करने में मज़ा आए, आप इंजॉय करो. So, my last question for you, Saloni, is कि ये जो fluctuating body weight होता है, इसकी वजह से हमारे हेल्थ को क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? सो आई फील इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम करते हैं. वेट फ्लक्चुएट क्यों होता है? बिकॉज पीपल हैव दैट माइंडसेट कि मैं अपनी पुरानी ईटिंग हैबिट्स पे जाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा. बट पुरानी ईटिंग हैबिट्स में कोई ना कोई गलती तो है, इसीलिए आपका वेट गेन हुआ. जी. सो इट्स टाइम टू reframe those eating habits into new ones. Yeah. And introduce certain habits which are going to be with you for the rest of your life. And if we come back to the second half of your question, कि क्या implications आती है अगर weight fluctuate होता रहता है? The biggest being heart diseases. I recently had a client जिसको कैंसर तक हो गया था because of fat diet histories. So why do you want to torture your body to an extent कि उनको ये सब diseases हो जाए? इम्यूनिटी क्रैशेस, कितने ज़्यादा यंगस्टर्स बीमार हो रहे हैं आजकल. क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर इन टू दिस अनरियलिस्टिक डाइट प्रोग्राम्स. यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, लूज 10 kgs in 10 days. Why? Yeah. So the question needs to be reframed. It should be introducing new habits so that it becomes a part of your lifestyle. Exactly. So that you then don't get certain diseases. So I have this actually one final question for all of you, like just a quick tip to follow a sustainable weight loss diet plan. First, check on yourself. Can you follow that diet for lifelong? या भी करोगे किसी एक्सपर्ट के साथ या ऑनलाइन फाइंड करके उसे छोड़ोगे, और यू विल बैक टू द स्क्वायर वन. Yeah. सेकेंड थिंग, फाउंडेशन सबकी थोड़ी लेट होती है. ग्रेड 2 में भी आई गेस न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिए जाते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में. सो चेक ऑन इज इट हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इट और नॉट. Yeah. ठीक है, बिकॉज एट द एंड योर बॉडी विल बी विल बी स्पॉइल्ड. या सो दैट्स आई थिंक 2 टिप्स. इट्स एंड गोइंग टू एन एक्सपर्ट. चेक ड क्रेडेंशियल. अगर आप ऑनलाइन भी चेक कर रहे हो, यूट्यूब पे भी चेक कर रहे हो या गूगल पे भी कर रहे हो, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहे. चेक द सोर्स, इज इट ऑथेंटिक, कोई एक्सपर्ट वो पुट अप कर रहा है. एंड बी वोकल अबाउट इट, आस्क क्वेश्चंस. अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ भी कर रहे हैं कोई डाइट प्रोग्राम, सो बी वोकल, आस्क देम आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, क्या है, पूछो यार. मतलब एक यू पेइंग फॉर दैट ऑल्सो एंड इट्स योर राइट ऑल्सो. ओके, सो लर्न अलॉन्ग विद दैट. एज आई डू विद माई क्लाइंट्स, आई टीच देम, आई टेल देम लर्न विद मी, communicate, ask as many questions you want, so that once you leave the program, you achieve your targets, you should be yourself your own expert. Yeah. Okay, so that's very important. Yeah. Rashmi, if you would like. From my side, I would say, first of all, stop calling it a weight loss diet. It's just a diet. आप किस मात्रा में खाते हैं वो वेट लॉस की तरफ जाता है या वेट बढ़ाने की तरफ, हमारे में सरप्लस बोलते हैं, उस तरफ जाता है. आप उसको वेट लॉस डाइट फॉर गॉड से बोलना छोड़िए. वो सेम खाना है जो आप रोज़ खाते हैं. मेरा दूसरा टिप आपके लिए होगा, आप प्लीज़ सेम खाना खाइए जो आप खाते हैं. आप मोटे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी मात्राएं बैलेंस नहीं हैं
और आपका एडिशन जंक फूड का मे भी ज़्यादा है, या आप सेम खाना भी जो खा रहे हैं, आपकी बॉडी जो कैलोरी आउट कर रही है उससे ज़्यादा आपकी कैलोरी इन है। मतलब आप 100 रुपये का खाना खा रहे हैं और सिर्फ 90 रुपये का खाना निकाल रहे हैं बॉडी से, तो 10 रुपये कहीं तो रहना चाहिए ना, तो वो आपकी बॉडी पर चिपकता चिपकता वो 100 रुपये आपकी बॉडी पर चिपक जाता है। अगर आप बेसिक, बहुत बेसिक सा गूगल करके एंड सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उनको अगर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा आपके रोज़ के खाने में वो सब कुछ है, सब कुछ। जिन जिन के घर में दाल, आटा, चावल, रोटी, आई अंडरस्टैंड मिलेट्स में इनमें अलग अलग एडवांटेजेस हैं, बट अगर मैं बोलूँगी तो कल से आप खाना तो नहीं शुरू कर दोगे ना। सो लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग जो आप कल से कर सकते हो। सेम खाना जो आप खा रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट खाना है। मैं जंक फूड को के बारे में नहीं बोल रही, चावल, दाल, रोटी, सब्जी के बारे में बोल रही हूँ। चावल आपका कार्ब है, रोटी आपका कार्ब है, आपके पास सब्जी है वो आपका फाइबर है, आपके पास सैलड है वो भी आपका फाइबर है, आपके पास दाल है, अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज आपका प्रोटीन है। फैट्स तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी खाते होंगे, वो थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप सिर्फ 1 वीक थोड़ा सा ट्रैक करके देखेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके मोटे होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़्यादा मात्रा में खाया हुआ खाना है, या वो मात्रा हल्की सी कम हो जाए, या आप अपनी हल्की सी एक्टिविटी बढ़ा दें। एंड यू शुड बी डन विद योर वेट लॉस थिंग एंड स्टॉप कॉलिंग द डाइट एज अ वेट लॉस डाइट। इज जस्ट डाइट। वो सिर्फ आटा चावल है। उनको नहीं पता कि आपको मोटा करना है कि पतला करना है। आप खुद उनसे मोटे और आप खुद उनसे पतले हो रहे हैं। So my take on sustainable weight loss would be to have the right portions of food. Instead of focusing only on what to eat, our focus should also be on how much to eat. And then we can eat anything and everything. One tip that I would like to give all of you who are trying to lose weight, get fit, whatever it is, that eat when you are hungry, not when you are bored or stressed. Move the way you like, not what is trending on the internet. Thank you. I would like to thank my panelists and the audience to be a part of the session.